something that is done in a superficial manner. In a superficial manner. That means गहराई से नहीं किया गया है. It has been done in a superficial manner. ये वर्ड अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता मुझे, राइट? बिकॉज ये सुपर जो पार्ट है इसका, दैट कम्स फ्रॉम द वर्ड सुप्रा, विच लिटरली मीन्स above. So when you say super, that means of exceptional quality, okay? But if I say superfluous, right? This part comes from the word fluid, which means to flow. So when I say superfluous, it literally means flowing from above. But the meaning it takes in English is something which is redundant, not necessary, right? Or excessive. That is superfluous. The adjective is superfluous. The noun form is superfluity. Okay? तो मैं क्या कर रहा हूं? आप बोलोगे क्वेश्चन का आंसर तो बताओ. ऑब्जेक्टिव हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है फिलहाल. हमारा ऑब्जेक्टिव है किसी न किसी बहाने से ज्यादा वर्ड्स को समझते जाना. इसलिए आई टेक ऑल दिस डाइग्रेशंस. सुप्रा का एग्जैक्ट ऑपोजिट इज इंफ्रा, विच मीन्स बीनीथ और बिलो. ओके, अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड which has infra in it is a word which says, which is infradignitatum. Infradignitatum, which means beneath one's dignity. Beneath one's dignity. Infradignitatum. लेकिन क्या है, ये वर्ड हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाता है और हम है मिलेनियल्स, हमको शॉर्टकट चाहिए. सिंपल सी बात है, इतना उड़ा दो. आजकल यही वर्ड यूज होता है, इंफ्राडिग, राइट? फॉर एग्जाम्पल, teaching was considered to be an infra-dig job 25 years ago, but today everybody wants to be an educator, though very few possess the skills. Educator. So that is infra-dig. Many engineers, I find it surprising that even mechanical engineers don't find the work of coding to be infra-dig. Beneath योर डिग्निटी. ठीक है, कोई चीज जिससे आपकी इज्जत कम हो जाए, दैट वुड बी इंफ्राडिग. ओके, एंड व्हेन यू गो टू द यूएस, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स who find some jobs infradig when they are in India, but when they go to the US, they do those jobs without complaining because they need to sustain themselves, like working as an attendant at a petrol pump. Anyway, so something that is done in a superficial manner is cursory. He glanced cursorily at the papers. मतलब ऊपर ऊपर से पेपर्स देखे. He scrutinized the papers. मतलब बहुत क्लोजली एग्जामिन करा. Cursory. Meticulous is a person who pays a lot of attention to the smallest of detail. A person who pays a lot of attention to the smallest of detail, which is very necessary when you are working in IT. You have to be very meticulous. लेकिन meticulous एक पॉजिटिव तरीका है ये बोलने का. ये बोलने का एक नेगेटिव तरीका भी है, and that is fastidious. Fastidious is a negative word for saying a person who is very detailed. ठीक है, टू द पॉइंट ऑफ इरिटेटिंग अदर्स. फैस्टिडियस. दोनों का मीनिंग सेम है, ध्यान रखिए. ये पॉजिटिव यूसेज है और ये नेगेटिव यूसेज है. याद रखिएगा, वर्ड का टोन हमको पता रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट?
सो लेट्स मूव ऑन. नॉट पेनेट्रेबल, ऑब्वियस, इम्परमिएबल. आपको याद होगा, अगर आपको साइंस याद है, थोड़ा जनरल साइंस, देयर यूज्ड टू बी अ मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन which allowed a few things to pass through it but a few things could not pass through it. semi permeable membrane. वैसे ही impermeable मतलब cannot be penetrated, right? Impervious, this means unresponsive or unaffected, जिसको फर्क नहीं पड़ता. यू हैव टू बी impervious to all praise and all criticisms and some criticisms if you want to keep on progressing in life. तारीफ को कभी भी सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है? क्रिटिसिज्म को सीरियसली लेना है. हो सकता है बंदा 100 चीज बोल रहा है, 10 चीज तो सही हो सकती है, राइट? तारीफ को कभी पॉजिटिवली लेना नहीं. अगर आपको कोई भी करियर में एकदम लॉन्ग टर्म सर्वाइवल चाहिए तो 5 साल पैसे कमा के भागना है तो कोई दिक्कत नहीं है. प्योर, इरेडिकेट इज टू रिमूव कंप्लीटली. अब ये रिमूव कंप्लीटली जो है, इसके लिए अब इतने सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश में. जैसा इरेडिकेट हो गया, एक्सटिरपेट मीन्स द सेम थिंग, annihilate means the same thing, okay? Obliterate means the same thing. Eradicate, extirpate, annihilate, obliterate. annihilate से रिलेटेड एक वर्ड है decimate. फर्क है. डेसिमेट comes from the word decimal which means 1/10. तो डेसिमेट का लिटरल प्रिसाइज मीनिंग है टू reduce something to 1/10. That means to destroy most of it. Annihilate का की वर्ड है nihil which means zero. Nihil which means zero. So annihilate is to destroy something completely. Decimate is to destroy most of something. Obliterate का मतलब नामो निशान मिटा देना कोई भी चीज का. Litter comes from the word, इसका मतलब है लेटर. इसलिए जो समाज में बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं ना, उनको लिटराटी बोलते हैं. और आजकल क्योंकि इंस्टाग्राम का ज़माना है, जो लोग हर पार्टी में दिखते हैं महंगे महंगे कपड़े पहन के, उनके लिए एक नया वर्ड आ गया, ग्लिटराटी. ये टाइम्स ऑफ इंडिया की देन है भारत को. और जो ट्विटर पे जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उनको बोला जाता है ट्विटराटी. ठीक है, शुरुआत लिटराटी से हुई थी. एंड रिमेंबर, यही रूट है आपका लिटरेट और इलिटरेट में. लिटरेट और इलिटरेट में भी यही रूट है, ऑब्लिटरेट. ऑब्लिटरेट लिटरली मतलब है पूरा, किसी को कोई भी अक्षर को पूरी तरह से उखाड़ के फेंक देना, किसी भी चीज का पूरा नामो निशान मिटा देना. दैट इज ऑब्लिटरेट. ओके, तो इरेडिकेट यूजुअली नॉन फिजिकल थिंग्स के साथ होता है. इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी. कोई बुरी चीज है जिसको आप पूरी तरह नष्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आप इरेडिकेट यूज करेंगे. कोई अच्छी चीज है जो पूरी तरह नष्ट कर दी, उसके लिए एनाइलेट यूज करेंगे. ठीक है, तो अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग थोड़ा सा यूसेज जाएगा. नॉट पेनेट्रेबल, बेसिक क्वेश्चन, आंसर इज इम्परमिएबल.